Assalamu alaikum dear students. So in the previous video we have completed 2 chapters of history, and now in this video, in this recorded lecture, we are going to start our book of geography, and the name of the book is Explore from Oxford, and the writer of the book is John Pallister. So our first chapter is earthquakes, volcanoes and fold mountains. As the name explains, we are going to discuss about earthquakes, their reasons, their effects, and uh, similarly we are going to discuss about volcanoes and fold mountains in this chapter. So initially we are going to discuss about the basics of the formation of earth, that how earth is formed, and we will discuss about the tectonic plates and plate boundaries, what basically a tectonic plate is. Usually we think that our earth is made up of rock and it is unbroken, but it is not true. It is made up of giant rock plates of different sizes. There are so many different plates that are so big in size, they are giant in size, and they are of different sizes. These plates are joined together to make the crust of earth. Basically there are 8 plates. These plates are divided into 8 different categories, and there are 8 plates, 8 largest plates in the world, and out of 8, 3 of them are in Pakistan. There are also many small plates also, and some of the plates are inside sea, like in Arabian Sea and in Iranian plates. Okay, so quickly I'm going to tell you the name of these plates. There is a North American plate, there is a Nazca plate, there is Antarctic plate, South American plate, African plate, Eurasian plate, Indo-Australian plate and Pacific plate. These plates are continuously moving in different directions. As our earth move, these plates also move in different directions, and due to these movement, these plates also form different crusts. So there are 2 types of plate boundaries. The first one is constructive plate boundaries, and the second one is destructive plate boundaries. So the first one, we are going to discuss about the first one, that is constructive plate boundaries. The basic definition is that when 2 plates move apart, the giant gap left between them moving the plates is then filled with magma that rises up and form the hot interior of the earth. This form a new land on the surface of earth, and that is why the name of these types of boundary is constructive plate boundaries, because they construct a new plate on the land. But on the other hand, there is also a destructive plate boundaries. And what is the basic definition of a destructive plate boundary is when 2 plates move towards each other, one place is forced under the other and destroyed. इट्स जस्ट लाइक कि 2 प्लेट्स अगर हम साथ में रखेंगे और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि एक प्लेट आखिरकार दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी, और इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. दैट इज़ द रीज़न वी कॉल दीज टाइप्स ऑफ प्लेट एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज. देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज इन द पैसिफिक ओशन, एंड वेयर दीज destructive plate boundaries exactly found. These boundaries are place of great tectonic activities. जितनी भी ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे कि अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और फ्रिक्शंस हो रही हैं, टॉल वॉल्केनोज जिनकी वजह से बन रहे हैं, ये सब असल में डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज़ की वजह से बनते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लेट अगर दूसरी प्लेट पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है और
दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। इसी तरह फ्रिक्शन हो जाती है प्लेट्स में, जिसकी वजह से मतलब दो प्लेट्स अगर आपस में टकरा रही हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, और इस फ्रिक्शन की वजह से उनकी जो इंटीरियर क्रस्ट में जो रॉक है वो मेल्ट होगी, और इस मेल्टिंग ऑफ रॉक्स की वजह से एक मैग्मा प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो मैग्मा क्या प्रोड्यूस कर देता है, मैग्मा बेस होता है वोल्केनो की। इसी तरह सेडिमेंट्स ऑन द सरफेस बिटवीन टू प्लेट्स आर कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड अप इनटू रेंजेस ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ये और वो फिर क्या बनाता है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स बना देते हैं। द थर्ड वन इज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। एक थर्ड टाइप भी है जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। तो हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी है, द फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव, द सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्टिव, एंड द थर्ड वन इज conservative plate boundaries. Now the definition of conservative plate boundaries is when two plates move against each other at different speeds, stresses build up which are released by occasional sudden plates movement, creating faults on the earth's surface and causing earthquakes. यानी कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज का भी रिजल्ट क्या होता है, अर्थक्वेक्स ही होते हैं। और ये दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से अलग हो रही होती हैं डिफरेंट स्पीड पे, ठीक है, और उसके रिजल्ट में जो फॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसको फिर उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी तक का है वो सैन एंड्रियास फॉल्ट है। ये कैलिफोर्निया के अंदर है। आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे ना सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो आपको इजीली गूगल आप करके देखिएगा, आपको उसकी पूरी एक पिक्चर आ जाएगी। इसमें क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ रब होती हैं और उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, और फिर ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से जो ग्राउंड होता है यानी रॉक कंटिन्यूसली शेक करती है, और जिसकी वजह से पूरी ग्राउंड शेक करती है, और फिर क्या होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है। तो बेसिकली जहाँ से ये प्लेट एक्टिविटी हो रही होती है ना, वो अर्थक्वेक का सेंटर होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो बेसिकली अर्थक्वेक्स क्या होते हैं कि ये वहाँ पर अकर करते हैं जहाँ पर फॉल्ट लाइंस होती हैं। ठीक है भाई, यानी जहाँ पर फॉल्ट लाइंस, वहाँ जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं। और ये अर्थक्वेक किसी भी टाइप की प्लेट बाउंड्रीज वाले एरिया में हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी, डिस्ट्रक्टिव भी और कंजर्वेटिव भी। तीनों टाइप की प्लेट बाउंड्रीज तीनों टाइप के जोन्स में ये हो सकते हैं। कुछ अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज के अराउंड होते हैं। कुछ जो है वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, उसकी वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होती। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में से है कि हम देखते हैं कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो ज़्यादातर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यहाँ पर आता है। इसका एक रीज़न है, यानी इस्लामाबाद, कश्मीर, हुंजा, गिलगित, ये पूरा मुजफ्फराबाद, ये पूरा एरिया हमारा जो है वो अफेक्ट करता है। उसका रीज़न ही ये है कि यहाँ से हमारी जो, अगर आप मैप पे इसको नोटिस करेंगे तो इन एरियाज़ में ही हमारी जो है वो प्लेट बाउंड्रीज गुज़र रही हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर जब भी मतलब कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो इसके रिज़ल्ट में हमेशा अर्थक्वेक आ जाता है और ये एरियाज़ हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेसिकली ये फोकस होता है। अच्छा, जहाँ पे अर्थक्वेक का फोकस होता है ना, यानी जो बेसिक एरिया होता है जहाँ से प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे से या तो कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, डिस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, यानी जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी होती है वो कहलाता है फोकस या फिर एपिसेंटर। तो जो एपिसेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है,
और फिर जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है, यानी जितने दूर होते जाते हैं ना, जितना ज़्यादा शॉक वेव्स जो है वो दूर होती जाती हैं, उतना कम डैमेज होता है। लेकिन वो वाला एरिया जहाँ पर एपिसेंटर होता है, जहाँ पे मेन फोकस होता है, जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी आई हुई होती है, हो रही होती है, वो एपिसेंटर कहलाता है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि हमारा, अगर किसी को याद हो, 2008 में एक अर्थक्वेक आया था हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, जिसमें कश्मीर का बहुत सारा एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा का बहुत सारा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। बेसिकली उसका जो एपिसेंटर था वो कोई मुजफ्फराबाद के करीब का कोई एरिया था, और बहुत सारे एरियाज़, छोटे छोटे गांव जो है वो तबाह बर्बाद हो गए थे। जो इनिशियली मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, कि जो मुझे याद है, तो हमें सुबह 8 साढ़े 8 बजे ये अर्थक्वेक आया था। तो जो फर्स्ट हमें न्यूज़ आई थी वो ये थी कि इस्लामाबाद में आया है, लेकिन बेसिकली इसका एपिसेंटर इस्लामाबाद नहीं था, ये कुछ इंटीरियर्स की तरफ था, आज़ाद जम्मू कश्मीर के आगे इलाके की तरफ था। इस्लामाबाद तो इस एरिया से बहुत ज़्यादा दूर था, और शॉक वेव्स यहाँ तक पहुँची थी, तो यहाँ तक एक छोटा सा डैमेज हुआ था। लेकिन जो बाकी के एरियाज़ हैं, जो एपिसेंटर था, वो एरियाज तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। बहुत ही बुरा हाल था। शायद अगर कहीं अवेलेबल हो वो न्यूज़ या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हो, तो आप प्लीज़ उसको सर्च कीजिएगा उस टाइम पे, या अगर यूट्यूब पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो प्लीज़ आप उसको सर्च कीजिएगा। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। इसके अलावा हमारे अत्ताबाद लेक है एक, जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट कर चुके हैं आप में से, उन्होंने देखी होगी एक अत्ताबाद लेक। अत्ताबाद लेक जब बनी है तो वो हुआ ये कि इसी तरह की टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से अर्थक्वेक के रिज़ल्ट में एक पहाड़ों में शगाफ पड़ा और वहाँ से पानी आना शुरू हो गया। ये जो अत्ताबाद लेक है, इसके नीचे पूरी आबादी थी, ये पूरा आबादी वाला एरिया था। लेकिन अर्थक्वेक के रिज़ल्ट में, जब बाद में शॉक वेव्स आती रहती है ना, आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में यहाँ पर पूरी एक लेक बन गई है, और ये सारे के सारे मकानात, पूरी आबादी जो है, ये इस लेक के अंदर चली गई। और अब ये पूरी एक झील है जिसको अत्ताबाद लेक कहा जाता है, और लोग यहाँ पर जाते हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं। ये एक तरह से ये एक ट्रैवल करने की एक जगह बन गई है। लेकिन बेसिकली इसके नीचे पूरा एक समझे एक छोटी सी वैली आबाद है। अच्छा, जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ होती है, इसको रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। और जो अभी तक, मतलब जो जितना ज़्यादा वैल्यू रिचर स्केल पर आएगी, उतना ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक है। यानी अगर 1 या 2 आ रही है तो इतना ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक नहीं है, लेकिन अगर 6, 7, 8 आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक है। रिचर स्केल बेसिकली एक नॉर्मल स्केल नहीं होता, ये एक लॉगैरिथमिक स्केल होता है, और ये जो है वो अर्थक्वेक की शॉक वेव को मेजर करता है। ठीक है, जैसे एक शॉक वेव है जो 5.0 है, ठीक है। यानी लेट्स से कि हम एक बेसिक एग्जांपल बना लेते हैं कि हमारी जो शॉक वेव है, एक हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया 4.0। तो लेट्स से कि अगर रिचर स्केल दिखा रहा है 5.0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 1 पॉइंट ऊपर है। 4.0 से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर 5.0 है। इसी तरह अगर 6.0 की हम बात करें तो वो 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है। अगर 7.0 की हम बात करें तो वो 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर है। इसकी छोटे से इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दूं, वो ये है कि अगर 4.0 रिचर स्केल पे अर्थक्वेक आया है, और अगर 10 घर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डिस्ट्रक्शन ये हुई है कि 10 घर बर्बाद हो गए, तो अगर 5.0 लेवल पे आएगा तो 100 घर तबाह हो जाएंगे। इतना ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह अगर 6.0 पे खुदा ना खास्ता आया तो 1000 घर तबाह होंगे, और अगर 7.0 पे तो 1,00,000 घर तबाह होंगे। तो इस तरह से जो है इसको मेजर किया जाता है। और वो जो 8.0 जो होता है वो तो मतलब बिल्कुल ही
तबाही और बर्बादी मचा देता है 8.0 लेवल वाला। जो अच्छा डिफरेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में कंटिन्यूसली होती रहती हैं। एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं कि इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से छोटी छोटी शॉक वेव्स अक्सर प्रोड्यूस होती रहती हैं हमारी अर्थ पे, जिसमें से जो 4.0 से जो नीचे वाली रिचर स्केल पे आते हैं ना अर्थक्वेक, उनके बारे में तो पता ही नहीं चलता हमें, वो हमें फील भी नहीं होते, ठीक है। और ये साल में कोई 1 लाख से भी ज़्यादा बार आते हैं ऐसे छोटे छोटे जो शॉक वेव्स होते हैं। ये 1 लाख से भी ज़्यादा बार दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स पे ऐसी शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती रहती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। 4.0 से 4.9 तक बहुत हल्का सा हमें कुछ महसूस होता है कि कुछ हुआ है, और इसमें डैमेज बिल्कुल बहुत ही कम सा होता है, और ये भी ऑलमोस्ट 10,000 तक जो है वो होती है। अच्छा, इसके बाद 5.0 से 5.9 तक जो है इसको काउंट किया जाता है मॉडरेट अर्थक्वेक में, और इसमें थोड़ा बहुत कुछ डैमेज हो जाता है, और ये ऑलमोस्ट एयर में 1000 बार ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इसके बाद होता है 6.0 से 6.9 तक, ये थोड़ा सा लाइक 6 से ऊपर जब अर्थक्वेक जाता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक काउंट किया जाता है, और ये थोड़ा ज़्यादा डैमेज देता है, और ये एयर में 180 टाइम्स आ जाता है। इसके बाद है 7.0 से 7.9 तक, ये मेजर अर्थक्वेक काउंट किया जाता है, और इसमें अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और ये हमारे जो जापान और इंडोनेशिया वाले एरियाज़ हैं ये अक्सर इस तरह के जो अर्थक्वेक्स हैं इनसे अफेक्ट होते रहते हैं, और ये समझें कि एयर में 18-19 टाइम्स आ जाते हैं। इसके बाद जब 8.0 से जो अबव होते हैं वो मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है इसमें, और बहुत ही ग्रेट अर्थक्वेक उसको काउंट किया जाता है, और ये कोई एयर में एक बार या फिर कोई 4 से 5 सालों में एक बार आ जाते हैं। इस तरह के अर्थक्वेक्स कम आते हैं, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जो एग्जाम्पल ऑफ रीसेंट मेजर अर्थक्वेक्स जो अभी पिछले 10 to 15 ईयर्स में, यानी हमारी जो न्यू सेंचुरी स्टार्ट हुई है 20 ईयर्स में अगर हम काउंट कर लें, तो जो रिसेंटली जो अभी तक के मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे मेजर अर्थक्वेक आया है वो आया है सुमात्रा के एरिया में, जो इंडोनेशिया यानी एशिया के अंदर ही आया है, इंडोनेशिया के एरिया में, और इसका जो मैग्नीट्यूड था रिचर स्केल पे वो था 8.7, और ये बहुत ही कोई डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था। ये आया था मार्च 2005 में। अच्छा, 2005 में कुछ बहुत ख़तरनाक और बहुत ग्रेट अर्थक्वेक्स आए हैं, जिसमें से जो दूसरा आया है वो नॉर्दर्न पाकिस्तान हमारे एशिया में भी आया है अक्टूबर 2005 में। 8 अक्टूबर 2005 में जो आया था, जो मैंने आपको भी बताया अर्लियर इसी लेक्चर में। हमारा जो कश्मीर वाला इलाका, एजेके वाला इलाका और नॉर्दर्न एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा पूरा उससे इफ़ेक्ट हुआ था। वो 7.6 मैग्नीट्यूड था उसका। इसके बाद फेब 2005 में भी आया था ज़रंद यानी ईरान के एरिया में, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 6.4। इसके बाद फिर 2006 में जो सबसे मतलब मेजर डिस्ट्रक्शन हुई है वो हुई है इंडोनेशिया में, फिर से ऑफ जावा के एरिया था ये, जुलाई 2006 में हुई है, और इसका मैग्नीट्यूड था 7.7। इसके बाद जो आया है वो फिर से इंडोनेशिया के ही इलाके में आया है मई में, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 6.2 था, और फिर अप्रैल में फिर ईरान के ही एरिया में आया है, वेस्टर्न ईरान में आया 6.0। और फिर 2007 के अंदर अगस्त में पीरू यानी साउथ अमेरिका में आया था एक बहुत डिस्ट्रक्टिव टाइप का अर्थक्वेक, जिसका रिचर स्केल पे मैग्नीट्यूड था 7.9। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक अर्थक्वेक्स। इसके बाद हमारे पास वोल्केनोज और फोल्ड माउंटेन्स रह गए हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और
फॉर नाउ आई सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि जो भी आपके पास काम आता जा रहा है उसको टाइमली आप कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद आप उसको जो कॉपीज़ जो नोटबुक्स आपके पास चेक होकर आ गई हैं काइंडली उसको लर्न करना शुरू कर दीजिए। साथ साथ मैंने आपको कुछ वर्कशीट्स भी सेंड की हैं। लर्न करने के बाद आपने वो वर्कशीट्स भी फिल करनी है, जैसे आप पहले लर्न करके फिल किया करते थे उन वर्कशीट्स को, और फिर हमें कॉपीज़ जब नोटबुक्स चेक होने के लिए आएंगी तो फिर आप हमें वो वर्कशीट्स भी भेजेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस एक्सप्लेनेशन।